Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series, and today we have a set from CAT 2021. So we have been doing calculated DI based set, right? So let's continue that part, and once you're done with all the calculative sets from the previous papers of CAT, then we'll look at other logical reasoning based sets, right? So today we have a set from CAT 2021. This is a visualization based puzzle set, and you have to calculate a bit, right? Now, as always, first pause this video right here itself, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right now, let's start understanding this set. So this looks like a Venn diagram. This looks like a bar graph based set. Sorry. Now, let's understand this. So, the horizontal bars in the above diagram represent 2020 aggregate sales in million rupees of a company for the different subcategories of its products. So, these are the subcategories: bookcases, chairs, furnishing, tables, and so on. Right? So, horizontal bar क्या define कर रहा है? The aggregate sales, and that sales is actually in rupees millions, right? Million rupees of 2020. ठीक है, for all the subcategories. For example, you'll have to look it very cleanly, right? तो ये जो vertical lines है कि हमारा 0.51 1.52 ये सबको डिनोट कर रहा है. So for example, this book cases का ये जो horizontal bar है, इसको नोटिस करोगे तो ये 2 और 2.5 के एक्चुअली बीच की वैल्यू है, राइट? सो 2 एंड 2.5 के बीच में होगा. सो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, तो आप इसको क्या लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2.5 है, तो उसका जस्ट मिडिल अगर होता तो 2.25 आता. सो ये मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट है, तो मे बी वी कैन एक्चुअली टेक दैट 2.2. अब कितना अप्रोक्सीमेशन इसमें चलेगा, विल हैव टू लुक एट इट, राइट? होपफुली यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मार्जिन ऑफ एरर अगर हमारे पास है, सो वी आर गुड टू गो. ठीक है, नाउ लेट्स कीप रीडिंग दिस. द टॉप 4 प्रोडक्ट सब कैटेगरीज. प्रोडक्ट सब कैटेगरी हमारा टॉप 4 जो है, that is bookcases, chairs, furnishing, and tables. These four belong to the furniture product category. तो ये चारों मिला के हमारा क्या है? Furniture product category है. The bottom 4 product subcategories, right? Bottom 4, that is accessories, copiers, machines, and phones. ये चारों मिला के हमारा technology product category का part है. So let's club them. So these are technology subcategory. Then while all other product subcategories belong to the office supply product category. तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक from binder to supplies, right? From binders to supplies, all of them belong to the office supply product category. तो तीन overall product category है, ठीक है? Office supply, technology and furniture. Next, for each of the product subcategories, there is a vertical line indicating the sales of the corresponding subcategory in 2019. Now, यही चीज हमने नोटिस करनी थी यहाँ पे. जैसे हर बार ग्राफ के अराउंड अगर नोटिस करोगे तो देयर इज अ वर्टिकल लाइन. नाउ ये वर्टिकल लाइन क्या डिफाइन कर रहा है या क्या डिनोट कर रहा है? द सेल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग सब कैटेगरी इन 2019. सो बार ग्राफ का जो हमारा वैल्यू था, वी हैव टू रीड इट विद रिस्पेक्ट टू 2020. और ये जो हर बार ग्राफ के अराउंड एक वर्टिकल लाइन है, लेट्स से this actually represent the sales of, let's say, bookcases, right? Aggregate sales of bookcases in 2019, right? So that is what it is given. कभी कभी नोटिस करोगे बार ग्राफ के लाइक बाहर हमारा एक्चुअली आके वर्टिकल लाइन है. सो दैट सिंपली मीन्स कि 2019 में ज़्यादा रहा होगा एंड 2020 में इट ड्रॉप्ड, तभी बार पीछे चला गया और हमारी वर्टिकल लाइन आगे रह गई. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट. Now we'll have to go to the problems one by one. Let's understand this. So the first problem, the total sales in rupees million in 2019 for products in office supplies categories closest to. Now office supply category हमारा क्या था? Last वाला था, right? This was the, no, not the last one, other, all others. So binder से लेके supplies तक. This is कितना entirely हमारा 2019 का निकालना है. सो ये बाइंडर्स लेके सप्लाईज तक जो वर्टिकल लाइन है उसका अपना अप्रोक्सीमेटली क्या करना है? एडिशन करना है. नाउ आई फर्स्ट लुक एट द नंबर्स एंड थोड़ा नोटिस करें. थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास है. 16.5 है, 12.5 है, 18 है, 13.5 है. सो थोड़ा बहुत भी अगर हम लाइक डेसिमल्स में अगर फर्क पड़ता है तो ओवरऑल आंसर पे बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा. सो होपफुली शुड बी गुड टू गो. जैसे बाइंडर्स में नोटिस करते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद बाइंडर्स. नाउ बाइंडर्स में जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्यों ले रहे हैं? अगेन बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 2019. सो बाइंडर्स का ये जो वर्टिकल लाइन है कहाँ है? 3.5
और 4K मिडिल से अप्रॉक्सीमेटली, मेरा मिडिल यहाँ पे आता, तो मिडिल के बीच में है, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं इसको हम, 3.5, 3.6 से थोड़ा ऊपर होगा, एंड मे बी 3.7 से थोड़ा कम होगा, राइट। सो 3.65 के आसपास होगा, मे बी 3.65 के आसपास। लेट्स टेक दिस। देन आर्ट में अगर नोटिस करें तो ये 0.5 से जस्ट पीछे है, 9.5। ना इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें, 0.5 यहाँ पे आएगा, 0.5 से पीछे है। नाउ दिस इन 5 पार्ट्स अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, अप्रॉक्सीमेटली ये 0.4 और 0.5 के बीच का नंबर होगा, राइट। 0.4 और 0.5 के बीच का नंबर होगा, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना ले ले रहा हूँ, 0.45, राइट। यू हैव टू विजुअली सी दिस। यहाँ पे हमारा 0.5 की लाइन है, यहाँ हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ते, तो ये जो लाइन है वो 0.5 के बहुत क्लोज है, मतलब वो 0.4 से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो आप 0.4243 ये सब नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल नंबर ले रहे हैं, 0.45 ले लेते हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड, आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन फॉर एरर। क्लियर। नाउ अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस अगेन नोटिस करें। अप्लाइंसेस अगर एक्चुअली मैं नोटिस करूं, इन दोनों लाइंस का 1/5 पार्ट एक्चुअली में लग रहा है, राइट, 1/5 पार्ट। सो 1.5 और 2 के बीच में अगर हम ये देखें तो 1.9 अप्रॉक्सीमेटली इसको मैं लेना चाहूँगा, राइट। सो लेट्स से दिस इज 1.9। देन ऑनवेलप्स, ऑनवेलप्स में कितना हो जाएगा हमारा, ये वर्टिकल लाइन नोटिस करो तो ये लाइक 2 पार्ट्स पीछे लग रहा है। सो दिस कुड एक्चुअली डिपेंड, क्योंकि मिडिल अगर देखते हैं यहाँ पे, तो मिडिल थोड़ा सा यहाँ पे आता, तो मिडिल वुड हैव बीन 0.25, 0.25 से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो 0.3 अप्रॉक्सीमेटली मे बी, ठीक है। अब 0.3 की जगह 0.35 है या 0.25 है, इट वुडेंट चेंज माई आंसर टू मच, राइट। सो 0.3 अप्रॉक्सीमेटली ले लिया। देन फास्टनर्स अगर देखोगे तो फास्टनर्स कितना है, 1/5 अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है, 1/5 ऑफ दिस 0.5, तो 0.1 यहाँ पे ले सकते हैं। लेबल्स, लेबल्स अगेन मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट है, सो 0.25 से जस्ट पीछे ले लेता हूँ मैं, 0.2 ले लेता हूँ। Then papers exactly lying on that 1.5 mark, so this is 1.5. Then storage हमारा कितना है, 4.5 के मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, राइट, अप्रोक्सीमेटली मिडिल से जस्ट राइट है, तो मिडिल हमारा 4.25 रहा होता, 4.25 से जस्ट ऊपर ले लेते हैं, दैट इज 4.3। एंड देन फाइनली सप्लाईज, सप्लाईज हमारा 1 के बहुत क्लोज है, ठीक है, तो 1.1 और 1 के बीच में ले सकते हैं मे बी, तो 1.05 चलेगा अपने को, राइट। सो दैट इज 1.05। एंड नाउ विल एड अप ऑल ऑफ दीज, राइट, बाइंडर से लेके अगेन सप्लाईज तक, एवरीथिंग वॉज ऑफिस सप्लाईज, राइट, ऑफिस सप्लाईज। तो सबको ऐड करते हैं पहले, इंटीग्रल वाला पार्ट ऐड कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा, 3, 3, 4, 5, 5, 5 and 4 is 9, 9 plus 1 is 10. Then first decimal place 0.6, 0.4, 1 हो गया। Then 0.9, 0.3, 1.2 हो गया, so 1.2 and 1, 2.2, 2.2 and 0.3, 2.2 and 0.3, 2.5, 2.5 and 0.5 is 3, 3 and 0.3 is 3.3, 3.3 अप्रॉक्सीमेटली, तो 13.3 के आसपास आया। नाउ जो सेकेंड डेसिमल प्लेस है वो कितना है, 0.05, 0.05, ठीक है, 0.05, 0.05 यहाँ नहीं है, और यहाँ पे 0.05 लिया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.15 आएगा, तो 0.15 भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। नाउ दिस वुडेंट चेंज माई आंसर टू मच, अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेरा ये वाला जो पार्ट था वो कितना आया था हमारा, 13.3 आया है, तो मेरा आंसर 13.3 से बहुत ज़्यादा वेरी डेफिनेटली नहीं करने वाला है, ठीक है। अब ऑप्शंस में भी देखो, ऑब्वियसली हमने बहुत क्लीनली इसको रीड नहीं करा, ठीक है, स्क्रीन से रीड करना है एग्जाम में। सो 0.15 मेरे हिसाब से 0.15 आया था, तो अगर मैं इसमें 0.15 ऐड करता भी हूँ, सो मेरा स्टिल आंसर कितना बचेगा, 13.45। आई एम नॉट गेटिंग एनी नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू 13.45, बट इट वुडेंट रियली मैटर टू मी, बिकॉज मैं इसके बहुत क्लोज एक नंबर पिक करने वाला हूँ ऑप्शंस में से, एंड दैट बिकम्स 13.5, right? I hope you understood this. Now let's go to the second problem. Let's understand क्या पूछ रखा है इसमें. Let's not rub anything. अगर कोई वैल्यू फिर से पूछ ली, so we wouldn't have to calculate it again. The second problem,
द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ फर्नीचर कैटेगरी, फर्नीचर वाला हमारा कौन सा था, स्टार्टिंग वाला, राइट, बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग एंड टेबल्स, पहले चार. The percentage increase in sales in the furniture category from 2019 to 2020 is closest to. Again, थोड़ा notice करो, 1%, 8%, 20%, 25%, so they're not really close. Right? अभी 20% and 21% होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसमें से वैल्यू कैसे रीड कर रहे हैं. ठीक है, बहुत बिकॉज छोटे नंबर्स है, लाइक 2.5 3 ऐसे रीड है, तो उसमें 0.3 का भी अगर ऊपर नीचे होता तो काफ़ी परसेंटेज का डिफरेंस आ जाएगा. बट बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज में काफ़ी लाइक वेरिएशंस है, 1%, 8%, 20% या 25%, सो बहुत ज़्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ेगा एज फार एज वी आर एक्चुअली नोटिंग डाउन द क्लोजेस्ट वैल्यूज पॉसिबल. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस. सो फर्नीचर वाले में कैलकुलेट करना है, चार हमारे पास कैटेगरी है, तो 2019 से 2020 रीड करना है, चार है तो 19 20 चारों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड पहले नोटिस करना पड़ेगा. लेट्स डू दिस. लेट्स स्टार्ट विद बुक केसेस. नाउ बुक केसेस में ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली उसका 1/5 लग रहा है, राइट. सो 1.5 और 2.5 का 1/5 हटा दो, सो 0.1, तो 1.9 अप्रॉक्सीमेटली है ये, 1.9. और ये रीड करो तो कितना है हमें, ये मिडिल से जस्ट पहले है, राइट, ये मिडिल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आता, तो मिडिल से जस्ट पहले है, सो मिडिल कितना होता है 2.25, उससे पहले का वैल्यू ले लूंगा, दैट इज 2.2. देन चेयर्स में, चेयर्स हमारा अगेन मिडिल हमारा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लाई करता, उससे पहले ही है, राइट. सो दो पार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली मैं ले सकता हूँ इस पूरी लाइन के. सो ये कितना है हमारा 6 पे है, राइट. सो दिस आई विल टेक एट 6.2. ठीक है, देन ये हमारा अच्छा है, दिस इज एग्जैक्टली एट 7. गुड. देन ये वाला जो लाइन है ये हमारा ऑलमोस्ट 2 पे टच हो रहा है, राइट, पहला नंबर 2 ही है अप्रॉक्सीमेटली, 2 से फिर भी थोड़ा सा राइट लग रहा है बट होपफुली मैटर नहीं करेगा. देन ये वाला ऑलमोस्ट 1/5 लग रहा है अपने को, 1/5 ऑफ दैट 0.5 वाला डिफरेंस, सो 0.1 ले लेते हैं. सो लेट्स टेक एट 0.1, 2.1. एंड फाइनली टेबल्स, टेबल्स में राइट वाला फिगर तो एग्जैक्टली 4.5 से मैच हो रहा है, और लेफ्ट वाला हमारा कितना है, मिडिल, मिडिल यहाँ पे होगा, 4.25, ये 1/5 तो नहीं है, अम, इसको हम 0.1 से थोड़ा पीछे ले लेते हैं, मे बी 0.15, लाइक टू बी प्रिसाइज 0.1 या 0.2 ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 4.5 से 2 पॉइंट्स पीछे भेज दो, सो लेट्स से पॉइंट 2 अगर मैं पीछे 4.3 के आसपास में भी हम ले सकते हैं इसको, राइट, 4.3 ले लेते हैं. ठीक है, 4.3. नाउ 2019 से 2020 ओवरऑल वैल्यूज ऐड करो, सो 1.9, 6.2, इसको हमने 2 लिया अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस वाज 4.3, सो कितना हो गया 1.9, 6.2, सो 6, 7 एंड 8.1, 8.1, 8.1.3, तो 8.4, 8.4 एंड 4, that is 12.4, 12.4 and 2, 12.4 and 2 is 14.4, 14.4 2019 का हमने फिगर अज्यूम किया अप्रॉक्सीमेटली, एंड 2020 का कितना हो गया 2.2, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11 एंड 4, 15, 15, और डेसिमल वाले कितने थे 0.2, इसमें नहीं है, 0.2, 0.1, 0.3, 0.3 and 0.5, 0.3 and 0.5 would be 0.8, so 15.8 approximately, right, 15.8. Let's again quickly calculate this just to be sure. 1.9, 6.2, 6, 7, 8.1, 8.1 and 2, 8.1 and 2, 10.1, 10.1, 14.4, ठीक है, and 15.8, 7, 2.2, 9.2, 9.2 and 0.1, 9.3, 9.3 and 2, 9.3 and 2, 11.3, 11.3, 15.8. ठीक है, तो 14.4 से 15.8 परसेंटेज इंक्रीज निकालना है. ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, सो 144 ले लेते हैं, पॉइंट्स इग्नोर ही कर सकते हैं, एक एक डेसिमल दोनों में बढ़ा रहा है, सो 144 से 158 का इंक्रीज हुआ है. ओवरऑल अगर चेंज देखोगे तो कितने का हुआ है हमारा, दिस इज 14 का चेंज है, राइट, 14 का चेंज है. अब यहाँ से आप लाइक विजुअली बोल के देख सकते हो, बिकॉज 144 का अगर आप 10% नोटिस करो तो कितना होता है 14.4,
144 का 10% कितना है? 14.4। नाउ आपको ये देखना है कि 14 कितना होगा, तो डेफिनेटली अगर ये 14.4 हमारा 10% है और 14 में से थोड़ा सा ही नीचे होगा ना, तो 10% से एक्चुअली में नीचे का वैल्यू आना है। बहुत नीचे भी नहीं होगा, बिकॉज 1% डेफिनेटली नहीं हो सकता, बिकॉज 10% अगर 14.4 है तो 1% क्या होगा? 1.44। उससे तो बहुत ऊपर है। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि हमारा जो क्लोजेस्ट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 8%। राइट, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू एक्चुअली डील विद दिस। देन थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ 4 मिलियन और मोर इन 2019? नाउ फर्स्ट क्राइटेरिया सेट करना है, बिकॉज सब कैटेगरीज देखोगे तो बहुत सारे हैं, सबके लिए तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसने एक एटलीस्ट कुछ डिफाइनिंग क्राइटेरिया दे दिया है। हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स ऑफ रुपीज 4 मिलियन और मोर? नाउ 4 मिलियन और मोर यहाँ पे है ना, दिस इज माई 4 मिलियन वाला मार्क, और इन 2019 बोल रहा है, तो वो जो बार ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन हमारी इस 4 वाले लाइन के बाद आनी चाहिए। और पूछा क्या है? दे हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स इन एक्सेस ऑफ 25%, 1/4 से ज़्यादा का इंक्रीमेंट आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत सारे पॉसिबिलिटी तो इसमें अपने को चेक करना भी नहीं पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ हम चेक करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चेक करो, राइट, 6.2 यहाँ पे था, एटलीस्ट हमने इसका नंबर निकाल रखा है, बिकॉज इसका 2019 में ऑब्वियसली ज़्यादा था। सो 6.2 से 7 हुआ है, 6.2 से 7 का मतलब 0.7 का इंक्रीमेंट। अभी इसका 1/4 अगर देखोगे, दैट इज 21, तो 1/4 1.5 से डेफिनेटली ऊपर जाएगा ना, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। देन यहाँ 4 से ऊपर ये है 4.3 से, लेकिन 4.5 है, ये सिर्फ हमारा 0.2 का इंक्रीज है ओवर 4.3। सो ऐसे देखो तो 2/43 का इंक्रीज है, राइट। अब ये हमारा 25%, 1/4 इसका अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा, राइट। तो 10 से ऊपर तो नहीं है, सो इसको भी अलाउड नहीं है। देन वर्टिकल लाइन हमारी 4 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आती है, यहाँ पे 4.3। अभी ये 4.3 था, इसका नंबर निकाल लेते हैं, तो ये 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है 1 है। 4.3 से 5.1, नाउ 4.3 का अगर 1/4 निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ऊपर ही आएगा डेफिनेटली, राइट। बट अगर इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता तो 5.3 से ऊपर आता, सो ये भी हमारा वैलिड नहीं हुआ। देन 4 से ऊपर वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे, बट ये तो चेक करने का पॉइंट ही नहीं है, राइट। ये तो अपने को चेक करने का पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज इसमें तो डिक्रीज ही हुआ है। लास्ट वाला अगर हम देखें यहाँ पे एक्चुअली में, सो यहाँ पे हमारा 5.5 और 6 के अप्रॉक्सीमेटली मान लो हम बीच में लेते हैं, बीच में भी नहीं है, बीच से थोड़ा सा राइट है। सो ये अच्छा है, 5.5 से 6, ठीक है। तो ये 5.75 से जस्ट ऊपर, तो 5.8 ले ले, 5.8, और ये हमारा कहाँ पे जा रहा है 2020 में? 7 पॉइंट मिडिल से थोड़ा सा पीछे है, सो दिस शुड बी 7.6, 7.7 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ इसमें अगर मैं देखूँ इंक्रीमेंट हमारा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 का हुआ है, राइट। 1.9, 58 प्लस 19 है 77, तो 1.9 अपॉन 5.8 या 19 अपॉन 58 कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। 19 अपॉन 58। नाउ 58 का अगर मैं 1/4 निकालता हूँ सपोज, ठीक है, 1/4 ऑफ 58, तो ये कितना आता है हमारा? 414 18, 4416, राइट। तो 14 4 इज 56 एंड 14.5। तो 58 का अगर मैं 25% देखता, तो एक्चुअली में 14.5 समथिंग आता, राइट। और 25% से इंक्रीमेंट ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली हमारा ये जो 19 है, वी कैन गारंटी कि दैट इज एक्चुअली ओवर एंड अबव दैट 25% मार्क। तो अक्रॉस ऑल द सब कैटेगरीज देयर इज ओनली वन कैटेगरी, दैट इज फोन, जिसमें हमारा ये कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, एंड हेंस इट बिकम्स द राइट आंसर। सो दिस सेट इज एक्चुअली ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन में अराइज कि हम किस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू रीड करेंगे। इवन इफ यू डोंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज इन प्लेस, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर आप विजुअली एरर भी करते हो, स्टिल विल गेट योर क्वेश्चंस करेक्ट, बिकॉज कैट हैज अलाउड फॉर दोस वेरिएशंस, मार्जिन ऑफ एरर इसमें एक्चुअली में दे रखा है। Right now, coming back to this fourth problem, that is something I'm actually giving you as a homework. तो ट्राई करना ये सेट को फिगर आउट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिगर आउट करने का, एंड इसके आंसर्स कमेंट में जरूर पोस्ट करना, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस सेट इज एक्चुअली वर्किंग। कैलकुलेशन किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। यू डोंट नीड टू यूज अ कैलकुलेटर एवरी टाइम, बिकॉज
using a calculator in CAT actually takes more time than actually calculating by hand or in the mind, right? So go ahead and solve that fourth problem for me. And CAT 25 का batch start हो रखा है. The classes have already begun. So if you're looking for a CAT 25 online program, right? If your friends are actually looking for that, so you can inform them, your juniors, right? Now, if you have any doubts in this particular set, you can just and always post that in the comments. Hope you have a good day. Happy Dashera. Thank you. Bye.